Hello everyone. Today I'm going to explain you a new chapter, Theory of Supply. यहाँ पे हम लोग सब कुछ सोचेंगे प्रोड्यूसर के बिहेवियर से. प्रोड्यूसर कैसे सोचता है, प्रोड्यूसर कैसे करता है. In this we'll study the concept of supply, stock and supply. इन दोनों के बीच में डिफरेंस, supply and quantity supplied, supply function, law of supply, exceptions, factors affecting supply schedule. Many things we'll be studying here. So let's start with it. Supply क्या होता है? Supply refers to the quantity that the producer is willing to sell at alternative prices during a given period of time. Supply means effective supply backed by the ability to sell in time period. Whenever you are going to write the definition, what you have to do is you have to mention very important things like the quantity you will not forget to write, willingness to sell, prices and time period. These are the four important points. अगर आप इन चारों में से कुछ भी पॉइंट को मिस करते हैं तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी. सो आपको ये कंप्लीट करना है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई? स्टॉक वो होता है जो हमारे पास रखा है. से सपोज इन अवर गोडाउन 100 यूनिट्स आर देयर. ये हमारे पास स्टॉक है, अवेलेबिलिटी. बट इनमें से मैं 60 यूनिट्स बेचना चाहती हूँ एज अ सप्लाई. तो ये मेरी विलिंगनेस है. वट एवर आई एम विलिंग टू सेल इज सप्लाई, and whatever is available with me during a period at a point of time, not a period of time, ध्यान रहे, at a point of time, this is stock. The total stock, quantity that is available in the market at a certain time. That means here we are talking about point of time, right? And the part of the stock which a seller is ready to sell or willing to sell at a certain period of time. Like producer has produced 200 chairs, ये stock हो गया. He is willing to sell 50 chairs at rupees 300, 100 chairs at rupees 400 and so on. तो ये उसकी willingness होगी. So now difference between supply and quantity supplied. अब supply और quantity supplied क्या होता है? देखो, supply को लेकर आप एक supply schedule नहीं बना सकते. तो अब यहाँ पे क्योंकि single quantity नहीं है, ठीक है, supply refers to the whole supply schedule. It is not a single quantity. आप अलग से अलग अलग quantity नहीं बताओगे. ये पूरी जो है ये सप्लाई है. 10 रुपये पे 30 गई, ये क्वांटिटी सप्लाई. 20 रुपये पे 40 गई, ये क्वांटिटी सप्लाई. लेकिन कंप्लीट अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? सप्लाई, राइट? ये कंप्लीट इज सप्लाई और द क्वांटिटी विच इज सप्लाइड एट सम पर्टिकुलर प्राइस इज क्वांटिटी सप्लाइड. लाइक दिस यू कैन से कि ये हमारी हो गई क्वांटिटी सप्लाइड, और पूरे को अगर हम कंप्लीट शेड्यूल को देखेंगे तो ये हो गई हमारी सप्लाई. अलग से आप कुछ सिर्फ सिंगल लाइन जो है वो आप नहीं बता सकते. ना सप्लाई फंक्शन. सप्लाई फंक्शन इज कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. सप्लाई के रिलेशंस क्या हैं. ना ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. अब वेरियस डिटर्मिनेंट्स पी एक्स, पी आर, आई, जी ऐसे इंडिविजुअल सप्लाई के हैं. पी एक्स इज प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, पी आर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, I is input goods, this is I, input cost. When we talk about G, it is government policy, right? तो अभी हम लोग इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये कैसा होता है. एस टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको टी भी लिख सकते हैं आप टेक्नोलॉजी करके. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and quantity supplied. That means price increases, quantity supplied increases. Price decreases, quantity supplied decreases. साथ में आ जाता है ceteris paribus, or you can say other things remains constant, right? If the price of a commodity rise, the quantity supplied of it rise, और vice versa का मतलब price कम होता है तो quantity supplied कम होती है. Other things क्या आ जाती हैं? Price of related goods, input cost, government policy and technology. Now supply schedule कैसे बनता है? When we make a table, it is supply schedule, right? Prices are increasing from 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and the quantity sold is also increasing. This is quantity supplied, QS. It is also increasing with the increase in the price. And when it comes to the curve, how do we make the curve? We can see that जब 20 रुपये थे तो we used to sell 4 units. जैसे ही price increases to 30 हुआ, we started selling 6 units. That means increasing.
जैसे ही प्राइस rises to 40 हुआ, we started selling 8 units. So when we join these 3 points, it becomes the line this is supply curve. It is upward sloping. Like demand curve we make downward sloping because there is negative relation. When we increase the prices, demand decreases. When they decrease the prices, demand increases because there is negative relation. That's why demand curve falls downward, and supply curve increases upward, right? Upward sloping of the supply curve. सो दिस इज सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व एक साथ. जब 10 रुपये था तो हम 2 यूनिट्स लेते थे, और जैसे ही 40 रुपये हुआ हमने 8 यूनिट्स लेनी स्टार्ट कर दी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ वेयर दिस लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट वर्क, कहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा? एज वी हैव स्टडीड लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता. ऐसे ही एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि प्राइस राइज होगा तभी आप ज़्यादा बेचेंगे. हो सकता है प्राइस में कोई चेंज ना है तब भी आप ज़्यादा बेचने को तैयार हो सकता है आप कम में भी ज़्यादा बेचने को तैयार हो. तो गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शंस, ये डिमांड में भी था कि प्राइस ज़्यादा होंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे. सेम हियर, गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शंस जो आपको सोसाइटी से एकदम अलग दिखाते हैं, शो ऑफ करना. प्राइस जब ज़्यादा होंगे तो सप्लायर भी सेल करना चाहेगा. अब लेकिन जहाँ पे अगर उसको लगता है कि यार ये चीज़ें तो और ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जैसे इसके अंदर आप कह सकते हो कोई पुराने सिक्के हैं, सपोज कॉइन्स या अशरफियाँ जिसे बोलते हैं. एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अशरफियाँ. अब अशरफियाँ कितनी अवेलेबल होंगी? बहुत कम. अगर कोई उसके लिए लाख रुपए भी दे देगा तो अगर उसके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा? प्राइस राइज हो रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही. इफ से सपोज कि हम बात करें लॉग ट्रीज की, लॉग ट्रीज जिसके पास लॉग ट्रीज का पूरा बाग है, जब बाग खत्म हो जाएगा उसके बाद वो सप्लाई कहाँ से करेगा? लॉग ट्रीज को लगाने में, उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है. इट विल टेक टाइम. एकदम से थोड़ी कोई चीज़ उग के आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी. तो ये सोशल डिस्टिंक्शंस के लिए. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सीजनल हैं, भाई होंगे तो दिए जाएंगे. ऐसा नहीं है कि प्राइस राइज होंगे तो ही हम बेचेंगे, भाई ख़राब हो जाएंगे. पेरिशेबल में तो बिल्कुल ही ख़राब होने वाले आ गए. सब्ज़ी कई बार आप लोग देखा होगा, कई बार हम लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं तो व्हाट द वेजिटेबल वेंडर डू इज़, वो थोड़ा सा धनिया और मिर्चें अपने आप डाल देता है. क्यों डालता है? कोई भी इंसान बिना पैसे के आपको कोई चीज़ क्यों दे रहा है? वो वहाँ पे क्यों खोल के बैठा है? अपने प्रॉफिट के लिए. वाई ही इज़ गिविंग द कोरिएंडर एंड दैट चिली, ग्रीन चिली फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री में क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता है वो रखे भी रखेगा तो उसका ख़राब हो जाएगा. दैट हैज़ टू बी यूज द सेम डे. और फ्री में भी वो फ्रेश नहीं देगा, पुराना वाला निकालेगा, चल इसको निकालो, सामने वाले कस्टमर को अपना बना लो. पता है जो चीज़ ख़राब होने वाली है उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं, आप सस्ते में निकाल दो. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीजनल है, आप जितना मर्जी महंगा कर लो. भाई प्याज हैं, महंगे होते हैं, सप्लायर नहीं सप्लाई कर पाता क्योंकि उसकी खेती नहीं हुई, उपज नहीं हुई उतनी. जितनी क्वांटिटी बनी होगी उतना ही तो बेच पाएगा, उससे ज़्यादा कहाँ से लाएगा? सप्लाई नहीं बढ़ा सकता वो, प्राइस राइज हो सकते हैं, राइट. So goods having distinction, you can look at it. Supply of such goods cannot be increased. आप कॉइन का एग्जाम्पल देख सकते हो. भाई इतने ज़्यादा कॉइन्स थोड़ी अवेलेबल हैं कि जितना भाई इतना ज़्यादा कोई प्राइस देगा तो हम और कॉइन्स बना के बेच जाएंगे. नो, ठीक है, ओल्ड कॉइन्स हो गई, लिमिटेड चीज़ें हैं, ये लिमिटेड हैं तो ज़्यादा हम दे भी नहीं सकते. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नेचुरल फैक्टर्स हैं, सीजनल हैं, सीजन के अकॉर्डिंग उगेगा. जब है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? उगेगा तभी तो देंगे. पेरिशेबल गुड्स, वही जो चीज़ हमारी ख़राब हो सकती है, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर सोल्ड इवन एट लो प्राइस एंड इवन फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक आई हैव गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ द कोरिएंडर लीव्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, अगर अकेले की सप्लाई की बात करें और मार्केट सप्लाई की बात करें तो क्या होगा? इंडिविजुअल सप्लाई क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इंडिविजुअल सेलर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और मार्केट सप्लाई क्या है? टोटल क्वांटिटी जो ऑल द सेलर्स, एक ही कमोडिटी है, बट ध्यान रखना कमोडिटी एक ही है, एक ही कमोडिटी को सारे सेलर्स कितना बेचना चाह रहे हैं विलिंगली, सबका मिला के हो जाता है तो मार्केट सप्लाई हो जाता है. इसको अभी हम टेबल और कर्व से समझते हैं. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल टेबल है इंडिविजुअल का. आप देखिए, ए का भाई जब 10 रुपये था, ए 7 बेचता था, बी 10 बेचता था, सी 12 बेचता था. जैसे ही प्राइस राइज टू 20 हुआ, ए स्टार्टेड सेलिंग 8 यूनिट्स, इंक्रीज्ड. बी स्टार्टेड सेलिंग 12 यूनिट्स एंड सी स्टार्टेड सेलिंग 16 यूनिट्स, इंक्रीज्ड. व्हेन प्राइसेस राइजेस टू ₹40, ए स्टार्टेड सेलिंग 10 एंड बी 16 and C 24. Now when we look at the market schedule, that means the combined A plus B and C at ₹10, total sale in the economy is 29. That means 7 plus 10 plus 12.
At rupees 40, it is 60. 60 means 40 plus 10 plus 16 plus 24. I hope this one is very much clear to you how this has been made. Now, individual supply and market supply. Now, individual supply और market supply का curve कैसे बनता है? Curve. When we make the curve, just look at the curve. Seller A जब 2 रुपये था तो 2 यूनिट बेचता था, 4 रुपये हुआ तो 4 यूनिट बेच रहा है. सेलर बी 2 रुपये पे 3 यूनिट बेच रहा है, 4 रुपये पे 7 यूनिट बेच रहा है. अब दोनों का मिला के अगर किया तो 2 रुपये पे कितनी यूनिट जा रही है हमारी? 2 + 3 5. 4 रुपये पे कितनी यूनिट जा रही है? 6 + 7 13. सो दिस इज मार्केट कर्व. जब पूरी मार्केट का हम लोग बना लेंगे तो इट इज़ मार्केट कर्व, राइट. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनपुट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये सब हमारे वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.